गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम अपना चैप्टर 6 टिश्यू कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसमें हमने जो है टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या है टिश्यू की। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। दिस इज कॉल्ड द प्लांट टिश्यू। और आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चैप्टर इज टिश्यू। नाउ द complex permanent tissue are made up of the more than one type of cells, राइट। यानी कहने का मतलब क्या, ये एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं एंड दे वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, और एक साथ वो काम करते हैं। दे ट्रांसपोर्ट वाटर, सॉल्ट एंड प्रिपेयर फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, राइट। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का अगर आप एग्जांपल लें, दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल क्या हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम। व्हाट इज जाइलम? जाइलम इज आल्सो कॉल्ड द वुड, यानी कि जो बाहरी जो हिस्सा होता है प्लांट का उसे वो जाइलम से बना होता है। इट इज अ वस्कुलर एंड द मैकेनिकल टिश्यू, दैट इज it is a conducting tissue. It's composed of 4 different type cells, that is called the tracheids, vessels, xylem, parenchyma and xylem fiber। ये 4 टाइप्स की सेल से जो है आपका परमानेंट टिश्यू बना होता है। Tracheids, they are the long tabular dead cells with the lymphoid walls and tapping tents. Vessels, they are the very long tubes, structure formed by the row of the cells placed end to end, and the walls are lignified. They generally possess the pits, यानी इसमें क्या वैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये देखिए आप स्ट्रक्चर पिट्स बने हुए ना, छोटे छोटे होल से बने हुए। Tracheids and the vessels transport water and the minerals vertically. Xylem, parenchyma, it consists of the living cells having thin cells wall. It stored food and helps in the sideway conducting of the water, यानी कि क्या करते हैं वाटर को या एक तो फूड स्टोर करते हैं प्लस वाटर जो है वो कंडक्ट करते हैं। Xylem fiber, they have elongated dead cells with tapering ends and the thick cell wall. They are mainly supporting in the function। उनका मेन काम क्या है, सपोर्ट करना। यानी कि हम देखा कि हमारा पेड़ जो है उसका तना सपोर्ट करता है प्लांट को, वो इसीलिए करता है क्योंकि जाइलम फाइबर से बना होता है। मेन फंक्शन क्या है इसके? फंक्शन ऑफ द जाइलम, जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स salt upward from roots to leaves and different parts of the plant. The component of xylem, like the tracheid vessel, the xylem fiber, and they have thick lignified walls, and so they are given mechanical strength to the plant body. Xylem parenchyma is only living tissue of xylem with help of the lateral conduction, water and storage, and the metabolic wastage। ये हमारा जो है इसका वक्त था। नाउ अब हम आते हैं फ्लोएम पे। xylem था, नाउ दिस इज द फ्लोएम। Phloem is composed of the following 4 elements of the cells: sheath tubes, companion cells, phloem parenchyma, and phloem fibers. Except of these phloem fibers, phloem cells are the living cells. Now, what are sieving tubes? Sieving tubes are the stentous tubes-like structure composed of the elongated thin-walled cell placed end to end. Their end wall are perfumed by the numerous pores and are called the sieve plates। यानी कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, राइट। आप देख सकते हैं, देखो आप पिक्चर में दिखाया हुआ है, छोटे छोटे होल्स हैं इसके अंदर। Walls of sieve tubes are the perforated. The nucleus is sieves are degenerated at the maturity. However, cytoplasm facets of the mature cells, thus nuclei are absent in the mature sieves of the tube element. The cytoplasm of the once tube's element is continuous with these of the sieves. Element above the below by the cytoplasmic connections passing through the pores of the sieves plates. Now next है companion cell, generally associated with the sieves tubes as small thin wall cell containing dense and very active
cytoplasm and the large elongated nucleus is called the companion cell and is connected with the sieves tubes by the numerous प्लाज्मेटा। फंक्शन क्या है इसके? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड, जो खाना बनाया है लीव्स ने, उस खाने को क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द लेटर फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑर्गन टू द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी तक, ताकि जो है वो खाना जो है प्लांट के बॉडी तक पहुंचे और वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। Now third is remove the peel and put a petri dish filled with the water. Add a few drops of the supplements and wait for the 2 minutes. Pour off the 2 glycerin of the clean sides and transfer the peels of the sides. Place the cover leaf of the leaf. तो हम देखते हैं कि जो है हमें ऑब्जर्वेशन क्या होगी? The peels contain many large parenchymic matrix cells. They are epidermical cells. At place these tips contain small oval along the structure called the stomata. Each stomata contain to a small kidney-shaped guard cell. A pore of the stomata present between the two guard cell. Stomata are sites of the gaseous exchange of the transpecies. ये दिखाता है कि हमारा जो है क्या है, स्टोमेटा है, राइट। नाउ वी स्टडी अबाउट एनिमल टिश्यू। अब तक हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, अब हम जो एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको जो है एक फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है। इस फ्लो चार्ट में आप जो है ये ध्यान से देखें कि एनिमल टिश्यू को 4 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एपिथेलियल, सेकंड है मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्व सिस्टम, राइट। तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या क्या आता है? जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन आता है, सिक्रीशंस आता है, और इसी को अगर फर्दर हम अगर आगे स्टडी करें तो इसमें हमारे पास जो है सेक्यूमोसिस है, क्यूबोडल है एंड क्यूमुलर है, ग्लैंडुलर है एंड द सिटलेटेड है, ठीक है। और अगर हम मस्कुलर की बात करें, ये हमारे मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, जो हमारे बॉडी पार्ट जो मूव करते हैं, हमारे हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, जहाँ पे मसल्स आती हैं तो वहाँ पे हमारे मस्कुलर टिश्यू मिलते हैं। और इनमें भी जो है इसको भी अगर 3 पार्ट्स में हम जो है डिवाइड करते हैं, दैट इज द नंबर इज द स्टेटेड एंड अनस्टेटेड एंड द कार्डिक, ठीक है। और कनेक्टिव, सपोर्ट, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऐसे टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं या बाइंड करते हैं। उसमें भी जो है अगर हम इसको डिफाइन करें तो एक हमारा आता है एरोलूज, उसके बाद है डेंस रेगुलर, एडिपोज, स्केलेटन एंड द फ्लूइड और द वेस्कुलर, ये इसी के अंदर आते हैं। लास्ट टिश्यू हमारा जो है वो नर्व टिश्यू होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के काम जो हमारी बॉडी करती है उसी में आता है। तो और इसी में तो जो है अब हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा एपिथेटिकल टिश्यू, राइट। एपिथेटिकल टिश्यू इज अ सिंपल टिश्यू, इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवर फॉर्मिंग, जैसा हमने पढ़ा था, प्रोटेक्ट करता है कंटिन्यूस शीट ऑफ द वन ऑफ मोस्ट ऑर्गन and the cavities within the body, ठीक है। and the cells are closely packed and without a intercellular space. It forms the barrier to keep different body system to separate. The skin of the lining of the mouth, lining of the blood vessels, lungs, alveoli, kidney, tubules are made up of the epithelial tissue, यानी कि जो हमारे इनर पार्ट्स हैं, ये माउथ हो गया, ठीक है, तो वो सारा हमारा इसी जो टिश्यू से बना होता है। एपिथेलिकल इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय द एक्सक्लूडेड फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। फंक्शन की बात करें, क्या क्या फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के? एपिथेलिकल सेल प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम द ड्राइंग, इंजरी, बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन। जो अगर हमारे स्टमक के अंदर या पेट के अंदर, मुंह के अंदर मान लो कोई इंजरी हो जाती है तो ऑटोमेटिक अपने आप ही वो ठीक हो जाती है, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट करता है हमें अंदर से, मान लो हमने कुछ ऐसा खा लिया है तो हमारे इंटरनल पार्ट को जो प्रोटेक्ट करता है। इनसाइड द बॉडी एपिथेलिकल सेल्स फ्रॉम द लीडिंग माउथ एंड द एलिमेंट्री कैनल एंड प्रोटेक्ट दिस ऑर्गन, ठीक है। हमारे अंदर की जो फूड पाइप है वो सब हमारे इसी
टिश्यू से बनी होती है। एंड द एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द न्यूट्रिशन, and it helps the elimination of the waste product. Some epithelial tissue are secreted with various substances such as sweat, saliva, enzymes, और इसी टिश्यूज़ के अंदर से जो है जो हमारी स्वेट होता है, सलाइवा जो है, एंजाइम ऑटोमेटिकली इसमें से सिक्रेटेड होते रहते हैं। एपिथेलियल फॉर्मिंग द लंग्स alveoli allow the diffusion gas between the blood and the alveolar air। तो इसमें जो है ये इसके फंक्शन है, राइट। Now, types of the epithelial tissue. Depending upon the shape and the function of cells, the epithelial tissue is classified as the follow. Epithelial tissue जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी जो अलग अलग शेप्स होती हैं कौन कौन सी। फर्स्ट इज द फ्लैटेंड सेल्स, सेकंड इज द क्यूबिकल टेल और द पिलर लाइक सेल्स विद सीलिया एंड विद सिक्रेटेड सेल। तो अगर हम पहले की बात करें फ्लैटेंड सेल, जैसे नाम से क्लियर फ्लैटेंड है, इट इज मेड अप ऑफ द थिन फ्लैट इरेगुलर शेप सेल विद अ फिट टुगेदर लाइक फ्लोर लाइक टाइल। देखिए इसका जो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ मिलेंगी आपको, इसकी अकरनेस की बात करें, इट फॉर्म द डेडिकेटेड लीनिंग ऑफ द कैविटी, माउथ, ऑस्फेगस, नोज, ठीक है, पेनिकाइमेट्स, ये सब हमारे इंटरनल पार्ट में मिलती है। फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ द जर्म्स, केमिकल एंड द ड्राइंग। इट्स आल्सो फॉर्म द सिलेक्टिव परमेबल सरफेस विच द फ्लेटर्स अकर्स। अगर बात करें नेक्स्ट वाले की, दैट इज द certified squamous epithelium. This is the found skin and covered with external dry surface of the skin. Cells of this tissue are arranged in many layers. Cell forming different layer of this epithelium are not similar. Deeper layer have the cuboidal cells, but they became the polygonal and finally flattened toward the free surface, right? सेकेंड हमारे पास आता है क्यूबिडल। नेचर इसका, इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स विच आर द स्क्वायर इन द सिक्रेशन बट द फ्री सरफेस अपीयर्स हेक्सागोनल। अकरनेंस क्या है इसकी, इट इज फाउंड द किडनी, ट्यूबुलस, थायरॉइड्स, वेसल्स एंड द ग्लैंडर, एंड इट फॉर्म द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द gonads, test and the ovaries. Function क्या है, it helps with the absorption, excretion and the secretion. It is provide a mechanical support, right? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगा हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। आप अच्छे से इसको सुने। हैव अ नाइस डे।